Okay, so let me record this particular session, and we are going for group discussion, and I'm going to give you a topic which was asked in Steel Authority of India Limited last time. And the topic for the GD is, it has come on your page, that is, how can farming be made lucrative profession? How can farming be made lucrative profession? There's a topic. So, you know, the farming is one of the sectors of economy other than industrial sector and manufacturing sector and service sector. So can this primary sector be made lucrative? So how can farming be made lucrative profession? That is the topic. I give you a couple of minutes. Anybody who is not got the yes, sir. Sir, could you please repeat the topic, or either you can okay. write So it topic in name is how can farming be made lucrative profession. It has come on your screen also. So how can farming be made lucrative profession? There's a topic. How can farming be made lucrative profession? Okay, those who have not written the topic name of group discussion, the topic is how can farming be made lucrative profession? How can farming be made lucrative profession? Please unmute, each one of you, please unmute yourself. Each one, please unmute. Okay, please go ahead now. Okay. Good evening, everyone. Today, I'm Rajesh Nayak. I start the group discussion on the topic how can farming be made lucrative. Very interesting topic for us. So, in my opinion, this is a very one of the backbone of our country. very interesting topic. In my opinion, We can I provide believe very that good points. the government has, I farming. believe that by two way we can think about it, how we can make this
farming lucrative. One is providing technical development, and other is by the support of the government. Before going to the solution, let's have a discussion. I agree with that. Before going to solution, First we can analyze on that why Basically something one of the background why something. See, the topic is how can farming be made lucrative profession. When you talk about profession, to making something in our life profession, that means एक craziness होना चाहिए उस चीज पर. तो craziness कैसे आ सकता है? जैसे कि हम लोग एक फार्मिंग जैसे प्रोफेशन को जो आजकल के दौर पे जो है बहुत सालों से जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कार्ड कर चुके हैं चीजों को. कोई भी ऐसा नहीं होता कि मेरे बच्चे आज जा रहे हैं किसी भी बनाने चीज होता है बेसिकली जो होता है जब हमारी ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि हमको उसको lucrative बनाने से पहले उसके स्टेप लिया जा सकता है. सचिन कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक देना है और एक हमें टेक्निकल मुझे हमको हमारा डिस्कशन में लेके जाना चाहता है जो देखिए जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लिया जाता है वो है गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना होगा या ऑर्गेनिक प्रॉपर स्टडी और डिजिटलाइजेशन ऑफ द फार्मिंग में वेल कनेक्टिविटी ऑफ द फार्मिंग टू सीड मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको गवर्नमेंट का स्टडी पे नहीं सोचना चाहिए बिकॉज़ सपोर्ट फार्मर को कर ही रहा है हम गवर्नमेंट पॉलिसी अप्लाई करना चाहिए लाइक हमारे कंट्री में कम होता जा रहा है प्रोफेशन है ना फार्मिंग. सही बोल रहे हो कि जैसे अभी हमारा इंजीनियरिंग लिटरेचर करना चाहिए. ये कैसे बना? सही बोला यहाँ पे गवर्नमेंट पहला है एक बहुत बड़ा डिस्कस करते हैं. मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि एक मिनट मेरी बात सुनिए सबसे पहले हमको बात पे डिस्कस करना चाहिए. फार्मिंग जो है वो हमारा यहाँ पे जो है मैं क्या पॉइंट ये सचिन आई थिंक उसके गवर्नमेंट को इस तरीके से काम करना चाहिए. ऐसी पॉलिसी करनी चाहिए. What will be the exact policy? पॉलिसी को इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है. इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट ये है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी Can you repeat your point? गवर्नमेंट विल improve the policy का मतलब है डिजिटलाइजेशन ऑफ द फार्मिंग. पहली बात है के साथ जैसे उसमें क्या होगा हमें क्या करना चाहिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहिए और पहले हमें स्टेप से शुरू करते हैं. पहले अजय जी बोलिए. मेरा पॉइंट है तो मैं यहाँ एक चीज और बोलना चाहूंगा कि फार्मर को एज ए रोल मॉडल हमें क्रिएट और हमें होना चाहिए कि गवर्नमेंट हर फील्ड में देखते हैं कि लुक्रेटिव सचिन से अमन से एक रोल मॉडल आता है. could you please repeat your point? एज ए रोल मॉडल We can't hear you properly. क्लियर नहीं हो रहा है, चीजें क्लियर नहीं हो पा रही. अजय जी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर मैनेज से चलता है. अजय करना चाहिए स्ट्रक्चर और मैनेज वो है कि फार्मर को सपोर्टिव मोड में रखना चाहिए. गवर्नमेंट पॉलिसी मैं कह रहा हूँ बिफोर अगर बनाने के स्टेप पहले हमको ये हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद उसको फॉलो करेंगे.
होता है प्रभाजी जो बोल रहे हैं पॉइंट स्ट्रक्चर, लेट मी हियर द स्ट्रक्चर। कोई भी अगर प्रोफेशन अगर लुक्रेटिव नहीं है तो उसके दो रीजन है। फर्स्ट इज मॉनेटरी रीजन, क्या उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। सेकंड इज रेस्पेक्ट। प्रभा जी का जो पॉइंट था, देखिए प्रभा जी का जो पॉइंट था कि सॉल्यूशन से पहले प्रभा जी का जो पॉइंट था, प्रभा जी का जो पॉइंट था, देखिए मैं खाली इसको ऐड करना चाहता हूं। प्रभा जी का जो पॉइंट था, प्रभा जी का देखिए आपका जो पॉइंट था ना कि सॉल्यूशन से पहले हम लोग क्या क्या स्टेप्स है, नहीं कोशिश देखिए टॉपिक ही बोला है कि हाउ कैन टॉपिक जो बोला है फार्मिंग में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक सपोर्टिव प्रोफेशन है न्यूट्रिशन में बनता है। पहले अगर हम लोग अपने प्रोफेशन को लुक्रेटिव बनाना है, जैसे हमारा इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर सब लुक्रेटिव प्रोफेशन है, तो उसमें कदें प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, प्रॉपर एजुकेशन होती है। हमारे पास आईएएस, एग्रीकल्चर में भी प्रॉपर कोर्स होता है भाई। एग्रीकल्चर होता है, आईपीपीएस होता है। अगर हमारे पास इंडियन फार्मर जिससे वो प्रोफेशन कोई इंजीनियर भी, कोई हायर अथॉरिटी जो उसमें भी होता है हायर करना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अगर हमारे एक प्रॉपर इंडियन फार्मर सर्विसेज नाम की भी जॉब अगर होती तो अल्टीमेटली हमारा लुक्रेटिव हो सकता है। अगर से जॉब नहीं भी है तो हमारे पास रास्ता बता रहे रिक्वायरमेंट का प्लान कितना फार्मर को चीजें लानी चाहिए फॉर द लुक्रेटिव पर्पस है, जो कि फार्मर ऑफ द ईयर जैसा अवार्ड आएगा। मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। देखो आप सभी को मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ। उसी अकॉर्डिंग स्मॉल एरिया पे वो देखना चाहिए कि उसमें इतना एरिया पे इतना प्रोडक्टिविटी हो रहा है, उसको एक्सपेरिमेंटल करना चाहिए। उसके बाद किसान को अजीत जी आपका पॉइंट क्या है? अजीत जी आपका पॉइंट पहले बोले तो पॉइंट आपका हर चीज में ओवरलैप हो रहा है। आपको पॉइंट बोलिए अजीत जी, पॉइंट क्या बोलना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि इंजीनियरिंग में एक्सपेरिमेंटल होता है, उसी अनुसार से एक फार्मर डिपार्टमेंट में एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। एक एरिया में डिवाइड करना चाहिए, इस कितना एरिया में इतना प्लांट यूज किया है तो उस प्लांट में कितना, अगर उस प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो रहा है तो उसको भैया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो फार्मर को देना चाहिए। बेसिकली वी आर नॉट फोकसिंग द रीजन दैट वो ये है इंडिया में भी ये चीज इम्प्लीमेंट करें तो ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा। हाँ, और प्रॉब्लम क्या आता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, चीजें नहीं होती हैं। वो तो फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है? आप मेरी बात समझिए कि अगर मान लो मेरे को मेरे को क्या बताना चाहिए, मेरे पास एक प्रॉपर एसओपी होती है ना। मैं कुछ अच्छा लग रहा है। देखिए मुझे लगता है कि हम फार्मिंग फेस कर रहे हैं, एसओपी होनी चाहिए, ठीक है? अगर किसी को फार्मिंग करना है तो अपने आप ये करो, फिर ये करो, उसके बाद अगर एसओपी होगी, मुझे एक पॉइंट बोलना है जैसे बनेगा इंजीनियर उसके बाद हम इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो कर रहे हैं, हमारे फार्मिंग में भी स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे ये ऐड करना चाहता हूँ कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करके होता है, उसमें भी हम अच्छा उसको एग्रीकल्चर कर सकते हैं।
मैं राजेश की बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाएगा तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। अजीत साहब मैं ये पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करके एक होती है, उसको भी हम प्रमोट करेंगे तो फ्यूचर में उसका अच्छा खासा स्कोप है। उसको दिख भी रहा है, हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट सिक्किम में हो गया, बहुत ही सिंपल चीज है। देखिए बहुत ही सिंपल चीज है। हम लोग को फार्मिंग को हम लोग को इंडिया में ओनली अप टू 10% हो रहा है। अलग अलग मेरे पास प्रोडक्शन जिससे कि और ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। अच्छा देखिए मेन बात ये है कम्युनिटी फार्मिंग की तरफ हमें इनिशिएट करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ग्रुप क्रिएट करना चाहिए, जनरेट होगा फॉर द ग्रुप क्रिएट करना चाहिए। उस ग्रुप व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप लाइक अजीत कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कम्युनिटी क्या करना चाहिए उसके साथ लेकिन एट द एंड जो 50 से 60% ऑफ द जो इसका आउटकम है दैट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है गवर्नमेंट अगर हम लोगों ने लॉस मेक किया है, हमने सारा काम किया फिर भी हमको लॉस हो रहा है, तो अगर इसमें गवर्नमेंट हमको सब्सिडाइज करे या हमको वो इंश्योरेंस दे कि अगर आप लॉस भी मेक तो ये अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट कैन डू सब्सिडाइज। इसके और एक अच्छा ऐड हो सकता है। अमूल जो है अमूल साहू जी का पॉइंट है, साहू का पॉइंट बहुत वैलिड है। मैं उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। इसमें बस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कि हम लोग टीम वर्क जैसे करते हैं तो क्या होता है कि जो गांव में किसानों तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको वर्क होना चाहिए। जैसे कि इंजीनियर शो ऑफ करता है कि हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर भी शो, लेकिन जो एग्रीकल्चर फील्ड में स्टडी आप कहना चाह रहे हो कि प्रॉपर की वजह से नहीं बना दें कि प्रॉपर को लाइब्रेरी गिव देम प्रॉपर भूल गए प्रोडक्टिविटी को देखना चाहिए। इफ दे गेट द प्रॉपर रिस्पेक्ट देन वी कैन सी अ लॉट ऑफ देखिए हम लोग अबाउट रिस्पेक्ट दीप चक्रवर्ती दैट विल बी अ बेनिफिट। हमारे इंडिया में देखो हम बोलते हैं कि जय जवान जय किसान, किसानों को ऑलरेडी देखो बात रिस्पेक्ट की नहीं है, बात होती है पैसे की। जहाँ पैसा होता है वहाँ रिस्पेक्ट होता है। जो बहुत बड़े फार्मर थे उनका हम लोग को प्रैक्टिकल बनाना है। हम लोग को जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का हुआ ना काम, उसी तरह अगर गवर्नमेंट हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये करे कि अच्छे अच्छे टाइप्स करे अलग अलग नेशन से और क्रॉप्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करे। हमको ऐसा सजेशन प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज वन ऑफ द बेस्ट। एक पॉइंट है जो मॉडर्न मेथड, एक पॉइंट है, देखिए एक पॉइंट है हम लोग को, देखिए एक पॉइंट है हम लोग को लुक्रेटिव प्रोफेशन। हाँ देखिए जब हम लोग बात करें कि फार्मिंग को हम लोग को लुक्रेटिव प्रोफेशन बनाए, तो इसका मतलब ये है कि फार्मिंग जो फार्मर लोग के लिए हम लोग को कुछ अच्छा चीज सोचना पड़ेगा, जैसे कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन वगैरह जो हो रहे हैं। वो नी इंग्रेडिएंट नी हाइब्रिड सीड के बारे में प्रॉपर स्टडी करके उन्हें आइडिया दे सकता है कि आप तो एक दूसरे को देखकर ही चलते हैं। मॉडर्न मेथड यूज कर सकते हैं फार्मर्स को। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ मोस्टली जो हमारे देश का किसान है मॉडर्न मेथड यूज करना आइडिया था वहाँ पे हमारे जो देश किसान है ग्रीन रेवोल्यूशन 2 नाम से ग्रीन रेवोल्यूशन 2 नाम से गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लाती है ना, हाई यील्डिंग सीड्स लाती है, हाई टेक्नोलॉजी लाती है, तो उस तरह से उसको लुक्रेटिव बनाया जा सकता है ना। तो गवर्नमेंट इंडिया में मेजॉरिटी लोग वीट उगा रहे हैं ना, लेकिन जो ब्लैक वीट होता है वो बहुत कम लोग उगा रहे हैं, जबकि ब्लैक वीट में जो प्रॉफिट परसेंटेज ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स ज्यादा होता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन हम सही जगह लोगों को दे, अगर वो उगाए। एक और एग्जांपल है कि एडिबल ऑयल का ले सकते हैं। मैं अजीत साहू की बात से एग्री करता हूँ यहाँ पे कि हमारे
और एक पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे ये लग रहा है, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। मुझे ये लगता है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जैसे कि हमारे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी तो देखते हैं लेकिन उसका प्राइस डिसाइड नहीं करते, जिसके कारण अगर हम उसका भी इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, जो डिफरेंट लाइक ड्रैगन फ्रूट हो गया, कीवी हो गया, उनका अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। फ्रूट्स वगैरह तो हो रहे हैं, पर हमें इसको एक इंडस्ट्री की तरह भी देखना पड़ेगा। आई एम टोटली एग्री विद अनीता, हमें वहां पे इंडिया में करना पड़ेगा, बड़ा पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये भी ले सकती है, सपोज करिए जैसे हम लोग बीटेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से करते हैं, तो ये प्रिपेयर करते हैं ना, ऐसे ही मतलब हमारी इंजीनियरिंग सर्विस अगर होती तो जिसने मतलब बीआर किया हो, जिसने बैचलर इन एग्रीकल्चर किया हो, अगर की बात में लो प्राइस। एक और पॉइंट है, देखिए एक सबसे अच्छा सा पॉइंट है, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, अगर इंडिया में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी तो उससे भी बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत हर बार क्या होता है, जैसे टमाटर बहुत सस्ता हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूज कैपेसिटी में वो मिल जा रहा है, और फिर उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास चीजें नहीं है। सबसे बड़ी बात है ना, और जिसके कारण गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट को भी यहाँ पे हमें कम्युनिटी फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी चीजें लानी पड़ेंगी, क्योंकि बिग जब बिग ट्रेड आएंगे, बिग बिजनेसमैन आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी है ना सचिन जी, देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बहुत सारे स्टेट्स में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक डिसएडवांटेज भी लग रहा है। क्या होता है ना कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि फार्मर को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या हुआ, उसका प्रोडक्टिविटी, उसका प्रोडक्ट खेत सही या फील्ड सही और उसका प्रॉफिट का हिस्सा उनको मिलता है। देखो इसमें सब्सिडाइज जो आप बता रहे हैं ना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें क्या होता है कि अमूल एक ब्रांड बन गया ना, अमूल एक ब्रांड बन गया, उसी तरह एक अलग से हम एक व्हीट का ब्रांड बना सकते हैं। एक पॉइंट है ना, नहीं ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रांड तो है ही। आई थिंक हमारे बहुत टाइम से एक पॉइंट नहीं आ रही है ना, ब्रांड मार्केटिंग की तरफ जितना भी स्टेप्स ले रहे हैं वो ब्रांड मार्केटिंग की तरफ किसान अगर हम उसको हेड बनाना चाहते हैं, ये नहीं कि हम किसान से सिर्फ खरीद रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, जिसके कारण अगर किसान मेहनत कर रहा है उसका प्रोडक्ट में इम्प्रूव लाने की कोशिश आके बहुत बड़े फील्ड में प्रोडक्ट आए, लेकिन क्या होता है किसान से लोग बिल्डर टाइप के लोग होते हैं जो ऑलरेडी फील्ड पे खरीद लेते हैं, वो क्या स्टोरेज में डाल देते हैं, वो एक टाइम का इंतजार करते हैं, they are the middleman, मार्केट में लाएंगे सपोर्ट प्राइस वो डर के मारे सस्ते में बेच देते हैं। ये होना चाहिए अमूल गवर्नमेंट को छोटे-मोटे किसान के साथ कांटेक्ट में होना चाहिए, फार्मर के साथ। मतलब वहां पे हमें रेगुलेशन बनाने के लिए जहां पर फार्मर्स को ज्यादा प्रॉफिट हो, सप्लाई डिमांड का जो बैलेंस मिडलमैन या कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट का एक अच्छा रोल हो सकता है यहाँ पर, गवर्नमेंट का एक अच्छा रोल हो सकता है। जो किसान है, फार्मर है, उनको समझ आनी चाहिए। एक्सपेंसेस होता है ना, देखिए जब अगर वेल कनेक्टिविटी बना दिया जाए, जैसे अगर जो फार्मर्स उगा रहे हैं उसको वेल कनेक्टिव मार्केट से बना दिया जाए, जैसे स्पेशल रेल चालू किया गया महाराष्ट्र से लेके ना डिफरेंट कंट्रीज में, हाँ उस तरीके से अगर एक्सपेंशन किया जाए तो सिस्टम होना पड़ेगा। सचिन की बात का मैं ये पॉइंट शेयर करना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट सपोर्टिव है उसका स्टोरेज का हेड जो कनेक्शन है उसको ऑनलाइन कर दिया अगर तो क्या सोच के दे दिया जाना चाहिए। सचिन की बात है कि मैं पॉइंट नहीं चाहूंगा कि अगर केंद्र और गवर्नमेंट के बीच जो गवर्नमेंट ने उसको हम इंपोर्ट के थ्रू कर दिया तो उसका भी एक अच्छा मार्केट देन आवर गवर्नमेंट के बारे में एक अच्छा पॉइंट है, गवर्नमेंट के बारे में अच्छा पॉइंट है। हम लोग जितना भी स्टेप ले रहे हैं ना, जब भी कभी होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप्स लेने हैं, जैसे कि कृषक लोगों के लिए जो योजगार जो प्लान होता है ना, जो फार्मिंग लोग के लिए कि कहीं कुछ चीजें जैसे कि कुछ खरीदना है उनको,
फर्टिलाइजर्स वगैरह उसको करना है या कुछ भी करना, तो उनको कुछ कम रेट्स में, थोड़ा चीपर रेट्स में अवेलेबल करा सके फार्मर लोग, सब्सिडाइज करना। स्टोरेज को एक बहुत लो रेंट पे फार्मर को किसान की एवरेज इनकम बहुत कम है। जैसे हमारे आईटी मिनिस्टर है ना, जैसे ऑनलाइन सिस्टम आईटी मिनिस्टर जो है वैष्णव जी जो है, उन्होंने लाया पब्लिक डिजिटल डिजिटलाइज कर सकते हैं फार्मिंग हद तक। हमारे हर एक प्रोफेशन एक प्रॉपर सैलरी होती है, इंसान वो सैलरी लेता है, वो खुश होता है। अगर मान लिया हमारी फार्मर की प्रॉपर सैलरी होगी, ठीक है, अगर आप देखिए उनका प्रॉपर सैलरी हो, उनकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो, देखिए पॉइंट अच्छा था। देखिए अगर जैसे मैं भी हूँ, ठीक है, तो मैं कोई प्रोफेशन यूज करता हूँ, वो वहाँ पे प्रॉपर जो है लुक्रेटिव जॉब जरूर अच्छा जॉब है, जॉब जो है मेरे पास एक अच्छा पॉइंट है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, ऐसा होता है कोई भी जॉब मैं एक पॉइंट करना चाहता हूँ। मेरे को स्टोरेज जो बनाते हैं, स्टोरेज को बहुत अगर से हम फार्मर को ही प्रोवाइड करना चाहिए, स्टोरेज को रेंट मैंने जो भी रेट हो ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, फार्मर के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। देखो मैं तो इस बात ऐसा कर सकते हो कि फार्मर खुद डिसाइड कर सकते हैं किसका रेट क्या है। मेरा कोई भी प्रोफेशन मेरा कोई भी प्रोफेशन जो है, आप एक बात बताओ, मैं नहीं, हम सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, एक मिनट आप मेरी एक बात सुन लीजिए। सभी से एक क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को मैं ये बोलूं कि आप जाकर के स्टील इंडस्ट्री खड़ी करो, आप बोलोगे कि नहीं मेरे को रिस्क है, बट मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको स्टील इंडस्ट्री में जॉब दूंगा, आप बिल्कुल जॉब करोगे। सेम वे में अगर मैं लोगों को ये बोलूंगा कि फार्मिंग करो, तो उनको पता है कि भाई मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं है, जैसे कि क्लाइमेट कैसा होगा, फिर सीड कैसा होगा, क्रॉप कैसा होगा। Sachin, how you efficiently use digitalization? डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं। देखो डिजिटलाइजेशन करने का तरीका क्या है, वेदर फोरकास्टिंग है ना, जिस तरह वेदर फोरकास्टिंग हमारा एप्लीकेशन पे आता है, उसी तरह अगर मार्केट बेस्ड और फील्ड बेस्ड एप्लीकेशन अगर हमारे मोबाइल पे आ जाए तो अच्छा इस मार्केट पे कौन सी डिवाइस क्या करना की डिवाइस है एप्लीकेशन पे ऑलरेडी है। कुछ लोग जहाँ भी मार्केट में लॉकडाउन में था कि इतना रुपया केजी है, वो सब प्रोवाइडेड। नहीं अजित आप उनका बात अगर मार्केट मुझे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि क्या होता है ना कि हमारे गवर्नमेंट मेरे पास एक बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सचिन जी अगर वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, कि हम समझ नहीं, जैसे हमारे अभी कुछ समय पहले साहू जी बोले थे कि जय जवान जय किसान का स्टेटमेंट हम लोग जानते हैं, लेकिन किसान को हम लोग डिसाइड करने का प्रॉपर चांस नहीं देते हैं। वो अगर स्टोर बना रहे हैं तो स्टोर को हेड उनको ही बनाना चाहिए ना, किसान को बनाना चाहिए। प्रोवाइडर जो सीट होता है वो डायरेक्ट ओवरऑल में 5 पॉइंट इंप्रूव किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी फैशन जी का एक पॉइंट ले लेते हैं। कम्युनिटी फार्मिंग, फैशन जी प्लीज कंटिन्यू।
प्लीज मैं कह रहा हूँ उससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन हमें कॉन्ट्रैक्ट में ये ध्यान रखना होगा कि फार्मर्स का अपर हैंड हो, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि ज्यादा है। अगर सरकार का स्टोर भी बना रहा है, नहीं हो रहा है, हमें फार्मर ही डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। समझ नहीं आ रही क्योंकि आवाजें क्लैश हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार में एक व्यक्ति कहे। I go to one by one. I go to each one of you. You have to give me only one solution. How can farming be made lucrative profession? आप लोगों ने बहुत से points discuss किए. I am going randomly to one by one, and you people will give me one solution at a time. You will not speak to only one. How can farming be made lucrative profession? That is a topic, and I want you to give me one by answer each. I start with Sachin. Sachin, give me your answer. Sir, thank you for giving the opportunity to conclude. मेरा सवाल क्या है सर कि अगर फार्मिंग को जिस तरह की अमूल क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह वर्क करती है, बहुत सारे फार्मर्स आते हैं अपने प्रोडक्ट को रखते हैं, ब्रांड बनाता है। अगर उसी तरह अगर हम फार्मिंग में भी अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग रीजन में मान लेते हैं, बिहार में मान लेते हैं, यूपी में मान लेते हैं, आंध्र प्रदेश में मानते हैं, वहीं के किसान अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले, अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग ग्रुप में ले आए, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा सोसाइटी के लिए, किसानों के लिए लुक्रेटिव होगा। एक हम देखते हैं आजकल लोग मतलब फायदा हो रहा है बहुत ज्यादा, जैसे जिस तरह अमूल का प्रोडक्ट है, अगर वो ब्रांड के रूप में निकल के आता है, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, वहाँ से इनकम भी जनरेट हो रही है, तो जहाँ पर पैसा आएगा लोग खुद ब खुद वहाँ पर लुक्रेटिव हो जाएंगे। उसी तरह हुई है। ओके, अमर साहू, 1 point. Unmute yourself. तो सर फार्मिंग को अगर हम लोग ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन बना रहे हैं, मतलब उसमें जनरली कुछ पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए या ये कुछ आउटपुट होना चाहिए जो फार्मर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कमा सकता है। जैसे सबसे एक ही पॉइंट में बोलूंगा, वो है सर मॉडर्न मेथड्स, जो इरिगेशन वगैरह मेथड्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस में, एक जो क्रॉप ग्रो शुरुआत से उसका एंड तक, शुरुआत होके उसका सीड्स डालने से उसका ग्रोथ तक, जो मॉडर्न मेथड्स वगैरह को हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट मे बी इरिगेशन हो सकता है, या मे बी जो हैवी इक्विपमेंट्स वगैरह हो सकते हैं जो हम लोग क्रॉप को खोदने के लिए उससे पहले जो लगाने से पहले जो सब करते हैं। तो उस चीज की वजह से मैं बोलूंगा कि प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी जो दोनों को अगर कंसिडर किया जाए तो सर मॉडर्न मेथड्स को यूज करना बहुत जरूरी है। और साइड बाय साइड, क्योंकि फार्मर लोग उतने वो मतलब वो वेल स्किल्ड, उन तो स्किल्ड ही नहीं, वो तो अनस्किल्ड होते हैं, तो साथ ही साथ उनको ये चीज स्किल्ड उनको सिखाना भी पड़ेगा। उनको यूज, जैसे कोई इंजीनियर को जैसे ला के या अपॉइंट करके उनको सिखाना पड़ेगा कि इसको कैसे यूज करते हैं, वो पर्टिकुलर मेथड्स को, मॉडर्न मेथड कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। सर ये मेरा पॉइंट है। अनीता सर, आई थिंक गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी ले आनी चाहिए, और सर वो सप्लाई चेन जो गवर्नमेंट और जो कस्टमर के बीच में, फार्मर और कस्टमर के बीच में होता है, उसमें हम ढेर सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जहाँ पे जैसे अभी फार्मर है अपने प्रोडक्ट को किसी एक को बेचता है, तो उसके मल्टीपल ऑप्शन हो उसके पास बेचने के, कि उसके प्रोडक्ट एक ही जगह नहीं जा रहे हैं, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन। गवर्नमेंट को ये फैसिलिटी ले आनी चाहिए, जैसे कि वो प्रोडक्ट को अपने एक ही जगह नहीं, उसके पास मल्टीपल ऑप्शन हो बेचने के, बहुत जगह उसके पास वो बेच सके, अपने प्रोडक्ट को बेच सके। और इसके लिए एक सिस्टम के थ्रू जाना चाहिए, गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, और उसकी अवेयरनेस बहुत अच्छे से फार्मर को देनी चाहिए, तो उससे वो एक प्रोफेशन की तरह आ सकता है। प्रभात, in agriculture, mostly there is not a major issue of production, but a major issue of supply chain. So as discussed, there should be a better connectivity with farms and the customers, and or wastage रोकने के लिए there should be warehouses, cold storage, and other facilities. Okay, Sachin, you have done. Now, Sahu, Ajit. Yes sir. Sir, am I audible? Yeah. Thank you sir. Sir, मेरा सजेशन ये है सर कि गवर्नमेंट बॉडीज या फिर कोई एनजीओस या फिर कोई भी प्राइवेट फर्म्स जो है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वो कोलैबोरेट करे फार्मर्स के साथ और उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करे सर। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत फार्मिंग में प्रॉब्लम ये है कि
कोई चीज गारंटी नहीं है। तो अगर वो इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करे कि अगर लॉस होगा तो वो सारा कंपनी बेयर करेगी, बट अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें कुछ परसेंटेज उन गवर्नमेंट का या फिर एनजीओ का या उन ऑर्गेनाइजेशंस का होगा सर। तो ऐसे में सर फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा और उनको डर नहीं होगा कि हम घाटे में जाएंगे, तो सर ऐसे वो लुक्रेटिवनेस क्रिएट हो पाएगी सर। थैंक यू सर। फैजन अनम्यूट सर। यस सर, आई थिंक कि अभी फार्मिंग में बहुत कम इनकम है और इनकम बढ़ाने के लिए देखो, और प्रोडक्शन हमारा बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन हमारा कम नहीं होता, बहुत प्रोडक्शन होता है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि एक वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नहीं है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अगर से बहुत सारी हो तो हमारा जो फूड का जो वो वैल्यू भी बढ़ेगी और वो इकोनॉमी में इंक्रीज भी करेगा। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को हमें क्रिएट करना ही चाहिए ताकि फार्मर्स की इनकम हो। और हमेशा गवर्नमेंट को इस चीज का इंश्योर करना है कि फार्मर्स के पास अपर हैंड हो, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि फार्मिंग इज अ वेरी वेरी रिस्की प्रोफेशन बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड वेदर पैटर्न्स। ओके दीप। So basically some middlemen are there in our society who force the farmers to sell their products at cheaper price. They basically store this product to gain more profit in future. Our government should take action on them, and so then the farmers can gain more profit from selling their products at a right value. Okay, now Rajesh. रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हमको एक कुछ नया ऐसा कुछ निकालना चाहिए कि जिसमें मैन्योर्स फर्टिलाइजर जो है या फिर जो ऐसा कुछ सीड्स हो जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो और हमारा रिटर्न हमारा ज्यादा हो। तो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमको प्रमोट करना चाहिए जिस वजह से मोर एंड मोर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस हो। Tell me again, Rajesh, repeat. सर मेरा ऐसा है कि हमारे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया में उसको कुछ ऐसा रिसर्च करके न्यू टेक्नोलॉजी के मैन्योर और फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने चाहिए जिससे कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो, हमको रिटर्न ज्यादा मिले। एंड उसके सेकंड ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अगर इंडिया में ज्यादा प्रमोट होता है तो उसके थ्रू भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। ओके सुमी। सर फार्मिंग को अगर लुक्रेटिव बनाना है तो मैं इसमें एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी देना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम लोग एडिबल ऑयल की बात करें तो हम लोग मोस्टली इंपोर्ट करते हैं 50 to 60%। तो उस सेक्टर में अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये पॉपुलराइज करें कि एडिबल ऑयल हमको बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हम लोग को वही चीज चाहिए होता है हम लोग को घर में खाना बनाने के लिए। तो इस सेक्टर में हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिसमें कि फार्मिंग का भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा। फार्मर्स को हम लोग इंसेंटिवाइज करें, प्लस अगर गवर्नमेंट कुछ ब्लेंडिंग टारगेट्स निकाले, जैसे कि इथेनॉल अभी हम लोग 10% ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जैसे बायोडीजल भी 5% करने का टारगेट दिया है। तो इस टारगेट को और ज्यादा इम्प्रूव करे ताकि एनवायरमेंट एस्पेक्ट भी बेनिफिट करे प्लस फार्मिंग भी बेनिफिट करे। तो इस सेक्टर में हम लोग को ज्यादा मतलब इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है सर। या अजीत। Yes, sir. First of all, sir, a lot of thanks to give me opportunity to conclude this topic. सर मैं प्रॉपर विलेज साइड से आता हूं, तो मैंने ये सिस्टम ऑल ऑटोमेटिक मैंने देखा है। जो मैं पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, पॉइंट ये है सर कि क्या होता है कि अगर धान का फसल होता है तो उसी टाइम ऑटोमेटिक एक सिस्टम आ जाता है कि धान जल्दी बेच दो, नहीं तो फिर नहीं बिकेगा, स्टोरेज में नहीं बिकेगा। तो मुझे लगता है सर गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव ये करना चाहिए कि स्टोर हर पैलेस में बनाना चाहिए और उसको एक ऑनलाइन सिस्टम, किसान को डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना चाहिए, नहीं कि सर अंबानी या अडानी वो बड़े कंपनी को देना चाहे प्राइवेट। जिसमें क्या होता है सर कि किसान तो बहुत सारा फेस्टिवल मैंने बहुत सारा अनाज तो उगाते हैं, पर प्रॉब्लम यह आता है कि वो सही डिसाइड सस्ते में बेच देते हैं, उसके कारण बिल्डर को प्रॉफिट हो जाता है सर। तो मेरा ये मानना है कि सर स्टोरेज को हेड फार्मर को ऑनलाइन सिस्टम में होना चाहिए, डायरेक्ट वो स्टोर रखे, वो उन लोग ही डिसाइड करें कि मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए। हर ऑनलाइन उसमें हर मंथ में हम लोग को पता होना चाहिए लोगों को कि अभी इसका प्याज का कीमत इतना है, ये है वो है, वो डिसाइड उन लोग ही करें, क्योंकि हार्ड वर्किंग उन्हीं का रहता है, इसलिए उन्हीं का होना चाहिए। जिससे सर आयु हो गया, सेल हो गया, सही इसी अकॉर्डिंग से उनका भी माने स्टोरेज टाइप का होना चाहिए, प्रॉपर गवर्नमेंट टाइप का होना चाहिए। ओके साहू अजीत। सर आई हैव ऑलरेडी स्पोकन सर। सर नॉट यू मयंक इसमें सर बेसिकली होना क्या चाहिए, अगर हम लिक्विडिटी बनाना है किसी प्रोफेशन को तो पहले तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सर गवर्नमेंट को पहले प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए
किसी को अगर फार्मिंग करनी है तो ठीक है, आपके ये स्टेप्स है, स्टेप्स की तरफ फार्मिंग करिए। और सर जैसे गवर्नमेंट अभी एमएसपी का कॉन्सेप्ट लेके आई थी, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, तो सर ये चीजें बिल्कुल प्रॉपरली रेगुलेट होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपका ये रेट है तो आपका हम इसी रेट से लेंगे, और जो बीच जितने दलाल वगैरह आते हैं उन सबको हटा के डायरेक्ट फार्मर टू गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी उनके थ्रू हमारी थोड़ा लुक्रेटिव बन सकता है ये। Okay. Okay, I think everybody has spoken now. So let me provide you the points which you people have given me. These were the points you gave. Topic is like, how can farming be made lucrative profession? So starting can always be that, friends, the topic given for us is something which is very, very important and long lasting topic, actually relevant all the time. And that is how can farming be made lucrative profession? Friends, we know that India still lives in villages, and farming still people, more than 60% of the population of this country depends directly or indirectly on farming sector. So we can understand how important and crucial this sector is in the lives of people. So it is not exaggeration that if we say India has poverty, or if the people are poor in India, the reason is farming is not become competitive. That is the reason for that. Compared to other sectors of the economy, farming or primary sector has not done very well. So friends, first to discuss more how can farming be made more lucrative profession, we need to understand what are the reasons it is not lucrative. The moment we understand what are the reasons why it is not lucrative, we can also discuss how we can remove those problems and we can make it more lucrative. So now I open the house for discussion among all of us. This is the introduction. First, you will tell what is the logic of farming, why farming is important in the life of people in India. More than 60% of the population directly or indirectly depends upon farming. That is the reason. So that means if farming is not productive or it is not efficient, poverty नहीं हट सकता इंडिया से. इंडिया में जो आपका लेवल है पर कैपिटा इनकम वो नहीं बढ़ सकता. And how farming can be made more lucrative profession, need to see why it is not. So what we need to do is we need to compare ourselves with those countries in which farming is a lucrative profession. Let's say developed countries. What happens is the farming, to make farming more lucrative in those countries, what happens is like farming is taken as industry. That means like any industry, machines are used, mechanized farming is done. In India, despite of our industries and agriculture universities, mechanized farming is not done. Second, it is not left on the whims and fancies and vagaries of the weather. ऐसा नहीं कि बारिश होगी तो प्रोडक्टिविटी होगी, बारिश नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी. So you cannot leave it on that particular factor. Otherwise, if unpredictability is there, you can never get productivity from this farming. So irrigation facilities need to be developed. That is the second point. So irrigation facilities have to be done. Fertilizer are to be there. Seeds are to be good. So what we learned from first green revolution in 1960s, that same thing we need to implement throughout India. India is a very vast country. Actually, some places may one type of crop will give you benefit, another type of crop. So we need to inculcate cash crop culture in India. Cash crop, ऐसी crop जो staple food की तरह use नहीं की जाती, cash के लिए use की जाती है. One more trouble which is being faced in India is like land holding. If the land holding per individual is very less, farming can never give you profit. So it has to be big land holding, and where like industry you are doing this. So it can be contract farming. I mean, people can hire the land on contract, and contract farming is done. So that means irrigation facilities are provided, fertilizers are provided, seeds are provided, mechanized farming is done. Then we provide, this all the market. Now the second thing is what crop we want to produce. Cash crop should be produced. Then there is something which is World Trade Organization. To make the product of India quality and competitive in the international market, government should step in. And the developed countries governments do that. Developed countries government give a lot of subsidy to their farmers so that their product becomes competitive in the market. Like suppose I want to sell rice in international market. Number one, my rice should be good quality rice. उसके लिए तुम्हें सारी चीज करनी पड़ेगी. सीड अच्छा होना पड़ेगा, फर्टिलाइजर शुड बी गुड, इरिगेशन शुड बी गुड, फिर देन उसकी स्टोरेज फैसिलिटी शुड बी गुड, देन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी शुड बी गुड, एंड देन गवर्नमेंट इज टू गिव सब्सिडी सो दैट माय प्रोडक्ट इज कंपिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट. Then there are some products which international market में already are competitive from India, like apple you talk about or anything like this. Government का role वहां पे भी आता है.
कि जो एप्पल लगता है, कहाँ पे लगता है अभी एप्पल? हिमाचल में लगता है, कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे उसको? या तो तुम बाई एयर करोगे या बाई शिप करोगे, तो वहां से वहां तक कैसे पहुंचेगा वो? स्टोरेज कैसे बनाओगे? तो दैट पर्टिकुलर थिंग also is to be done. So what is the role government is to play? That also is to be seen. And then we need to link it with, as you said, this market, like this you were talking about some industries which are based upon this. I think somebody mentioned about income generating food processing industries. Yes, so food processing industries. So these kind of industries, like any kind of industry which is based upon the agriculture, those kind of industries should be grown. So our product, I mean some of the product which already is competitive in the international market, that also is to be promoted. ये देखो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकता है? फार्मर की इनकम तभी बढ़ेगी अगर पैसा उसको मिलेगा, पैसा तभी मिलेगा अगर एक्सपोर्ट उसका कर पाएगा वो। तो दैट इज ऑल्सो टू बी डन। तो जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, लैंड होल्डिंग कम है, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, लैंड कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट है, इरिगेशन फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है, सीड एंड फर्टिलाइजर देना है, एंड इंटरनेशनल मार्केट में उसको कॉम्पिटिटिव बनाना है। दीज आर द थिंग्स which we need to think of. And last but not the least, we need to motivate youngsters to pursue this as a lucrative profession. You need to make them entrepreneurial, this thing is to be inculcated in them. Entrepreneurial bent of mind has to be there. Like when youngsters, when technocrats, youngsters, they start thinking of going to agriculture sector, assuming it to be productive or beneficiary, entrepreneurial opportunities में खोलेंगे तो वो एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। बट उन सबसे पहले इकोसिस्टम इज टू बी क्रिएटेड। इवन एंटरप्रेन्योरशिप भी उसी सेक्टर की तरफ जाती है जो सेक्टर बूम कर रहा होता है। अगर आपको लगेगा ई कॉमर्स बूम कर रहा है, या आपका ऑनलाइन एजुकेशन बूम कर रहा है, या आपका आईटी सेक्टर बूम कर रहा है, तो लोग उसी में जाएंगे। अगर सबको पता है कि एग्रीकल्चर में बेनिफिट नहीं है तो बहुत कम लोग उसकी तरफ जाते हैं। तो पहले तो आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा इकोसिस्टम, उसके बाद यंगस्टर्स उस तरफ फ्लॉक करेंगे, और जब वो फ्लॉक करेंगे तो शायद वो सेक्टर और ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट करे। सो इट इज द क्यूमुलेटिव एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड many other bodies in between. That is how it has to be. This is the point which is to be done. बाकी आप सब लोगों ने जो पॉइंट्स दिए हैं, these points are good. Let me read those points which you gave. Sachin said cooperative society होना चाहिए अमूल के लाइन पे. That is also good. That is a good idea. Amar said modern irrigation facilities. Then method should be skilled people should be there. Their skills should be enhanced. Anita talked about government policies. So you need to be, Anita, very specific which policies you are talking about. What do you expect from government? Export ke liye you need to tell that okay, for export we are saying or something else. Then you said okay, we need to provide that customer or farmer ke beech ka jo link missing hai, we need to marketing ka, you were talking about the marketing part. Actually marketing has to be really good. Then Prabhat was talking about supply chain to be improved. Again the same point. Sahu talked about NGO providing insurance to the farmers. NGO तो नहीं दे सकता, लेकिन गवर्नमेंट या बैंक से इंश्योरेंस कंपनीज दे सकती हैं. Faisal said income, production, warehousing, food processing industry should be there. That is what he talked about. All relevant points there. Deep said middleman must be removed. Depends actually what middleman is doing. Sometime middlemen are working good. ये जो एग्रीकल्चर फार्म्स बिल निकले थे पंजाब में, जो रिवोल्ट हुआ था, तो इसीलिए हुआ था कि मिडिल मैन निकल जाएगा उसमें से. बट मिडिल मैन इज अ बिग सपोर्ट टू फार्मर्स आल्सो, एंड दैट आल्सो अर्न्स फ्रॉम दैट. फिर राजेश ने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का बात किया, हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड ऑल, दैट कैन हेल्प इन सीड एंड फर्टिलाइजर्स एंड ऑल. सुमी इंपोर्ट एडिबल ऑयल की बात किया, अजीत स्टोरेज ऑनलाइन की बात किया, एंड मयंक स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड. दैट इज व्हाट मयंक सेड. सो आई थिंक दीज ऑल वर रेलेवेंट पॉइंट्स. That is how we all discussed. So I think these were the points from your side. That is all good. Now all from my side. Anything you want to say or tell? जैसे आपने इंडिविजुअल पूछा तो ठीक था, बट जब डिस्कशन हो रहा था तो किसी का कुछ पॉइंट ही समझ नहीं आ रहा था कौन क्या बोल रहा है, तो उस सिचुएशन में फिर कैसे हैंडल करा जाएगा? नहीं देखो, पॉइंट्स जो लोग बोल रहे थे अगर आप ध्यान से सुनोगे तो पता तो चल रहे थे कि क्या बोल रहे हैं. कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपने नोट करने हैं वहां पे, एक एक दो पॉइंट आप नोट करोगे, सो दैट जब कंक्लूजन का टाइम मिला तो यू आर इन पोजिशन टू कंक्लूड. सो इन द मिडिल पार्ट यू नीड टू स्पीक, you need to give your points, 2-3 relevant points, and at the end when conclusion is said that okay you conclude, then you have to conclude whatever discussion is there. That is how you have to proceed. Okay sir. हाँ सर, यही प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि डिस्कशन से बीच में जब हम लोग मैं सुन के ऑब्जर्व करके पॉइंट ले रहा था,
तो इतना ओवरलैप हो रहा है कि ज्यादा पॉइंट्स नोट नहीं हो पा रहे, जैसे कि 4-5 जहाँ डिस्कस हो गए, लेकिन हम लोग सिर्फ 1 या 2 ही नोट कर पा रहे हैं, मतलब मैं कर पा रहा था, तो उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा। आपने एक वर्ड नोट करना है बस, यू हैव टू नोट वन हाँ सर, वही एक वर्ड। यस सर, एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते थे स्टार्टिंग में, चलिए ठीक है मैं 3-4 पॉइंट बोले, फिर मेरे को ध्यान से सुन रहा हूँ, मैं शांत हो गया बिल्कुल से, और जैसे ही कंक्लूजन का पार्ट आया तो फटाफट कंक्लूड कर दिया, तो वहां पे ये दिक्कत ना हो जाए, वो बोलेगा इसने 2 ही पॉइंट बोले बाद में शांत रहा, तो वो दिक्कत तो नहीं आएगी फिर? नहीं, आपका कंक्लूजन तो कुछ देर के बाद होता है ना। हाँ, तब तक आप बोले, शुरू में बोलिए आप, और फिर जब कंक्लूजन की बारी आएगी तब थोड़ा सा शांत हो जाना, सो दैट कंक्लूड के लिए गियर अप हो जाए आप। कंक्लूजन इजीएस्ट होता है। ठीक है। कंक्लूजन वही करता है जो तैयार हो जाता है। सर एचआर के लिए आज मुझे पता ही नहीं चला कल कुछ। एचआर देखिए अजीत, आप मेरे साथ बहुत एचआर कर चुके हैं, मैं आपके लिए तो मेरे पास क्वेश्चन खत्म है, तो यू डू इट विद अदर मेंटर्स, देयर आर 2 मोर मेंटर्स, राइट? तो उन लोग से भी कर रहे हैं, लेकिन सर आपका कुछ अलग ही लगता है। मैंने आपको मैं एचआर आई हैव अटेंडेड 4 ऑफ योर एचआर, शुड आई अटेंड मोर और नॉट? You can attend but not every day, don't do that every day, after 2-3 days। सर कल होगा कि नहीं सर? कल मोस्ट प्रोबेबली मैं स्लॉट दूंगा तुम्हें। यस सर, मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्लॉट चाहिए, मैं एक भी नहीं दिया हूं। ओके, सो टुमारो विल फिक्स अप द एचआर स्लॉट आपके ग्रुप।